والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہیں بکتا نہیں بازار. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، رمضان المبارک تبدیلیوں کا مہینہ ہے، اور یہ تبدیلیاں سب سے پہلے اس کا آغاز اللہ خود کرتے ہیں. وہ جہنم جسے پورا سال جلایا جاتا ہے، رمضان المبارک کے آتے ہی اللہ الرحمن خود محبوب علیہ السلام سے اعلان کرواتے ہیں، اور وہ اعلان پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے کہ جہنم بند کر دی جاتی ہے. مالک الملک شیطان کو قید کر دیتے ہیں، رمضان میں وہ لائیو نہیں آ سکتا. اس کی کوئی پرانی ریکارڈنگ، پرانے لیکچرز، تربیت، کوئی آڈیو ویڈیو پڑی ہو اور اسے انسان استعمال کر لے الگ بات ہے، لائیو نہیں آتا. مالک الملک وہ جنت جسے خاص مواقعوں پہ کھولتے ہیں، مومن وضو کر کے شہادتین کی گواہی دے، یا عورت اپنے خاص امور طے کرے تو اس کے لیے جنت کے اندر کھولے جاتے ہیں. مگر رمضان کے آتے ہی تبدیلی ہی آتی ہے کہ سب کے لیے جنت کو اوپنلی پورے 8 دروازوں کے ساتھ اعلان کر کے کھول دیا جاتا ہے. اچھا، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں مگر آنے والے کو ملتا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کے در نہیں کھولے، ایک روایت کے مطابق وفتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتے. اچھا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوا تو بڑی چل رہی ہوتی ہے مگر ہمارے اپنے اندر کے در بند ہوتے ہیں. باہر ہوا چل رہی ہے، ونڈو بند ہے. تیسری روایت میں ہے وفتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازے بھی کھلوا دے. اور جب دروازے کھلتے ہیں تو بندہ اندر آ ہی جاتا ہے، جیسا کہ باجوہ صاحب آ گئے. اگر ایک انسان دروازہ کھلنے پہ آ سکتا ہے تو رب کی جنت کے در کھلنے، رحمت کے در کھلے ہیں اور آسمانوں کے در کھلے ہیں. اتنی بڑی تبدیلیاں. اور پھر آواز لگائی گئی ہے، آواز بڑی خاص ہے، یا باغی الخیر اقبل. یہ گونج تھوڑی سی کم ہو، بھلائی کو چاہنے والے آ جا، توجہ کر. اور برائی کی طرف رغبت کرنے والے رک جا. آج کی اس مجلس میں جو لیلۃ القدر کا ایک متلاشی جستجو میں میں سب سے پہلے خود سے مخاطب ہوں، پھر آپ احباب سے. آپ نے علماء کرام کے مواعظ حسنہ سنے، سمجھے، اللہ سے عمل کی توفیق مانگی، اللہ قبول کرے. آمین. مجھے صرف اسی روایت کے اوپر کچھ باتیں کہنی.
بھائی یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے جو پیغام بھیجا ہے کہ جہنم کے در بند ہو گئے، آپ نے اور میں نے اپنے گھر بار میں، قرب و جوار میں، لیل و نہار میں، اپنے تعلقات عامہ میں جو گھر گھر کو جہنم بنایا ہے، جہنم کدہ بنا رکھا ہے، سینوں میں بغض کی آگ، کینے کی آگ، نفرتوں کی آگ، ایک دوسرے کی بربادی کو دیکھنے کی آگ اور تمنا آرزو، میں تجھے مٹا کے چھوڑوں گا، ہٹا کے چھوڑوں گا، ختم کر کے چھوڑوں گا، میں تیری نسل مار دوں گا، میں کسی کو اپنا مد مقابل دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ گزارش کر رہا ہوں ٹھنڈے دل سے، لیلۃ القدر میں تشریف لائے ہیں، مسجد میں اے سی چل رہے ہیں، اے سیوں کے ہوتے ہوئے ہیٹر کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ کیوں نہیں چلا رہے؟ اگر رب نے جہنم بند کر دی ہے تو کیا میں نے اور آپ نے اس دنیا کو جو جہنم کدہ بنا رکھا ہے کچھ ہم نے بھی کمی کی؟ اگر کی ہے تو مبارک، دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا بڑی اہم ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی۔ اس پہ کچھ گزارشات آخر میں کروں گا، لیکن سوالیہ نشان ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جتنا بندہ خود کو جانتا ہے کسی دوسرے کو اتنا نہیں جانتا ہوتا۔ مجھے علم ہے میرا کہاں معاملہ ہے، کہاں نفرت ہے، کہاں کینہ ہے، کہاں جھگڑا ہے، کدھر بغض ہے، کون مجھے اچھا نہیں لگتا، کس کے خلاف میں نے الاؤ اور شعلے جلا رکھے ہیں، ایندھن دے رکھا ہے، پھونکے مار رہا ہوں۔ گرگٹ کی طبیعت میرے اندر آ گئی ہے، جو نارے نمرودی کو جلانے اور بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا تھا۔ میری یہ نیچر کب ختم ہوگی؟ رمضان بھی اپنے 2 عشرے گزار چکا ہے۔ قدر انہی کی جاتی ہے جو قدر کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر انہی کو ملتی ہے جو اس رات کے مالک کی قدر کرے۔ اور جب آواز یہ آئے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، نعمتیں رب دیتا ہے، جلتے تم ہو، رب کا وقار کہاں ہے؟ رب کا وقار کہاں ہے؟ حضرات، پانی تیرے میرے وجود کا سب سے زیادہ حصہ ہے، کائنات کا سب سے زیادہ حصہ پانی ہے، چوتھا حصہ کچھ کی ہے، 3 حصے پانی ہے۔ اتنا پانی اگر رب کی صرف اس ایک نعمت کو دیکھ لے کہ وہ پانی کو کیسے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ دنیا کی اس وقت جو سب سے بڑی جنگ مانی جا رہی ہے پانی پہ ہوگی۔ بھائی کیوں پانی پہ ہوگی؟ معاملہ پانی کا نہیں ہے، وہ تو 3 حصے پڑا ہوا ہے۔ معاملہ من مانی کا ہے، بندے کے بغض کا، کینے کا ہے۔ پانی تو بڑا وافر ہے، انڈیا اگر نہیں چاہ رہا کہ وہ پانی ادھر آئے، پاکستان نہیں چاہ رہا کہ اللہ کے دیے ہوئے پانی کو سنبھال پائے، آپ اور میں ایک ملک میں رہتے ہوئے سندھ پنجاب پانی کے معاملے میں متفق نہیں ہو رہے تو کہیں کینہ ہے، کہیں ناانصافی ہے، کہیں ٹیڑھی تقسیم ہے، وگرنہ رب کا سسٹم تو بڑا عظیم ہے۔ 3 حصے پانی، سمندر، اور پھر سارے سمندر رب نے کڑوے کر دیے، نمک ڈال دیا۔ مالک نمک ڈال رہا ہے جی، صرف تم تو نہیں جیتے، اس کے اندر بھی تو کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات جی رہی ہیں، ان کا جینا بھی وہاں، مرنا بھی وہاں، کھانا بھی وہاں، پینا بھی وہاں، رہنا بھی وہیں۔ اگر میں نمک نہ رکھتا تو بدبودار ہو جاتا پانی، میری حکمت ہے۔ اب تمہیں بھی پانی دینا ہے، میٹھا کر کے دینا ہے، اتنا نمکین نہیں پیا جاتا۔ میں نے سورج کی پاور کو استعمال کیا۔ تو میری قدر کو نہ جانے تو تیری مرضی، تو میرا ڈر، میری ہیبت، میری کبریائی
मेरी गिरदगारी तक ना पहुंचे और रमजान में भी ना पहुंचे, लैलतुल कद्र में भी ना पहुंचे, बड़ा कड़वा बन के रहे। मैं तो कड़वे समंदरों के पानी मीठे कर देता हूं, तब्दीली लाता हूं, हवाएं चलाता हूं, आबी बुखारात बनाता हूं, भाप बनाता हूं, हल्का करके ऊपर उठा देता हूं, नमक नीचे रहने देता हूं और बादलों में लाके तेरे इलाके में बरसा के गारंटी आसमान की लेबॉर्टरी से देता हूं। व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने जो अब पानी नाजिल किया है ये खुद भी साफ पाक ताहिर है, और तू जिस इस्तेमाल में लाएगा, बर्तन को धोएगा तो बर्तन पाक, आप वुजू करेगा तो तू पाक, और गुस्ल करना चाहे तो तब भी पाक। पीने के लिए चेक करके देख, दुनिया में बारिश के पानी से बढ़ करके ज्यादा अच्छा पानी कोई और नहीं है। मेरा इतना बड़ा सिस्टम है, तेरी तकसीम, लड़ाई झगड़े, मैंने उसे नहीं देना, उसे नहीं देना, उसे नहीं देना, वो मैंने तो तुम्हें थोड़ी सी महदूद सी ताकत, कुव्वत, हिम्मत और कुछ जो है वो चीजें दी हैं, और तू समझता है सब मेरा है। एक इंतकाल लगता है जमीन तेरी हो जाती है, तेरा इंतकाल होगा तो जमीन का होकर रह जाएगा, ये एहसास नहीं तुझे पैदा होगा। हजरत, जब तक हम रब की किब्रियाई को, नमाज के पहले जुमले अल्लाहु अकबर को दिलों में नहीं बिठा सकेंगे, ये आग नहीं बुझेगी, ये जहन्नम कदे बंद नहीं होने। जाइए किसी भी सोसाइटी में, मोहल्ले में, बीवियों से सिर्फ थोड़ा सा सवाल, मौका दीजिए, आप रिलैक्स होकर किसी हकीम को, तबीब को, अदीब को, किसी आलिम को, किसी स्कॉलर को, किसी आमिल को, किसी उस्ताद को चंद लम्हे आजादी के साथ बीवी को कहिए कि बैठ, तू अपने सारे दुख बता सकती है, इतनी लंबी चार्ज शीट होगी जो अपने शौहर के बारे में वो दिल में रख के बैठी है। किसी भी शौहर से बात करके देख लीजिए, जब तलक रब्बे किब्रिया की किब्रियाई को नहीं समझोगे। मैं एक नुक्ते से थोड़ा करीब करना चाहता हूं और फिर बात को समेटना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। सूरह रहमान पहली 3 आयतें तकरीबन हर बंदे ने सुन रखी हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। बड़ा ही मुख्तसर कर रहा हूं कि सारे मुफस्सिरीन सर जोड़ के इन 3 आयतों की तरतीब पे बैठ जाते हैं कि यार रहमान ने ये क्यों कहा कि मैंने कुरान सिखाया, इंसान को बनाया। तरतीब तो ये होनी चाहिए थी ना कि अल्लाह ने कारी साहब को बनाया, फिर कुरान सिखाया, फिर वो आगे कारी बने। पहले तो नहीं, पैदा होते तो कारी नहीं थे। लेकिन आखिर इस नतीजे पे पहुंचे कि बंदा इंजीनियरिंग की जिंदगी 100 साल गुजार दे, डॉक्टर बन के, तबीब बन के, अदीब बन के, खतीब बन के, मेहरबान बन के, बड़ी बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी और उलूम के अंदर इमाम बन के 100 साल का भी हो जाए, जिसने कुरान नहीं पढ़ा वो पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं। अब ये कुरान ने ये क्यों कहा कि जिसने कुरान नहीं पढ़ा वो पैदा ही नहीं हुआ। मेरी 16 साल उम्र थी जब मैं फैसलाबाद आया और मुझे किसी ने पूछा लो और देखे, तो मैंने माजरत की कि नहीं। उस बंदे का जवाब बड़ा अजीब था, कहने लगा अगर तू जमेगा। तो मुझे हैरानी हुई थी ये बात सुन के कि 16 साल उम्र हो गई है, काम काज करते, खेती बाड़ी करते, पढ़ते पढ़ते जिंदगी का इतना हिस्सा गुजरा है, 16 साल का हो गया हूं और पैदा ही नहीं हुआ। तो जुमले से जुस्तजू नहीं पैदा होती कि बंदा पता तो करे लो और जाएगी। लेकिन जब रहमान कह रहा है कि इंसान, तेरा रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, इंसान बनाया, इंसान बनता ही तब है जब कुरान पढ़े। आइए कैसे बनता है सुनिए। सूरह रहमान में अल्लाह कहते हैं जिन्नों के सारे टोले मिल जाएं, इंसानों की सारे ग्रोह मिल जाएं, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान के किनारों को सारी ताकत, कुव्वत, टेक्नोलॉजी, साइंस, माल, दौलत, पैसा, जमा पूंजी लगा के सिर्फ निकल के दिखा दो। 1400 साल हो गए इस चैलेंज को।
अभी तक कोई रॉकेट, अभी तक कोई मिसाइल, अभी तक कोई एटम, कोई पावर, अभी तक कोई फ्लाइट्स ऐसी नहीं बन पाई कि जो ये काम करके दिखा सके। इतनी बड़ी जमीन है। मैं रब्बे किबरिया की किबरियाई के थोड़ा करीब कर रहा हूं, जस्ट अंदाजा, हालांकि अल्लाह की मिसाल नहीं। मालिक क्या कहते हैं? जमीन। और नासा क्या कहता है कि 1300 जमीनें, 1300, एक दो नहीं, 1300 जमीनें इस जमीन जैसी इकट्ठी करके ले आओ। ये जो निजाम शमसी तेरी पावर के लिए मैंने सूरज के गिर्द सितारे रखे हैं, जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी उन्हें पता है कि निजाम शमसी में कितने सियारे हैं। उन सियारों में से एक सियारा है मुश्तरी। 1300 जमीनें मुश्तरी के पेट में आ सकती हैं, उसके शापर में आ सकती हैं। 1300 जमीनें मुश्तरी के बर्तन में, हाथ पाट में, ब्लैक होल में दाखिल कर दी जाए, मुश्तरी फिर भी बड़ा है। इतने बड़े मुश्तरी को बोला 1000 मुश्तरी जो 1300 जमीनें अपने पेट में रख के बैठा हो। 1300 जमीनें खाने वाला, हड़प करने वाला, मुंह में डाल लेने वाला, ये 1000 मुश्तरी मिले। सूरज उनको अपने दामन में ले ले तो वो 1000 मुश्तरी छोटा है। ये सूरज 4 करोड़ सूरज मिल जाए तो तरंगड़ 3 सितारों के दरमियानी सितारे के पेट में आ सकते हैं। इतना बड़ा है वो दरमियानी सितारा। फिर ये कहकशाएं, ये खलाएं, ये गैलेक्सीज, ये मिल्की वेज, ये आसमान, ये सारा कुछ, ये सियारे निजाम शमसी अपने अपने फलक में जो चल रहे हैं, ये सब किस लिए है? तेरे लिए पावर देने के लिए। तेरे एक एक दरख्त का पत्ता सोलर पैनल बना दिया, तेरे वजूद पे एक एक बाल सोलर पैनल बना दिया, तेरी जिल्द पूरी कायनात मेरी इतनी है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कितना बड़ा? अल्लाहु अकबर। इसीलिए जिस भी इबादत को रब ने मुकर्रर किया उसका नतीजा ये रखा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में डर पैदा हो। डर। बच्चे ने दिया सलाई पकड़ी होती है, माचिस पकड़ी होती है, जला रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है। बाप आयो क्या की साथ ही छुपा लेता है कि नहीं? डर है, हैबत है, दबका है, वजका है, रख रखाव है, रोब है। ये दबदबा है तो अब है। अगर तूने रब की किबरियाई को समझा है तो रब है, वगैरह ना सिर्फ खोखले नारे, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बस नहीं। ये एक मिसाल है और अल्लाह की मिसाल लैसा कमिथलिही शै, रब की मिसाल जैसा भी कोई नहीं। तो फिर जहन्नम से बचने वालों, दुनिया के जहन्नम कदे बंद करो। जन्नत मांगने वालों, पहले घर को जन्नत नुमा बनाओ, जन्नत नुमा बनाओ। एक सवाल कर रहा हूं, जरा दर्द दिल से सोचना। ऊपर माए बहनें भी शायद सुन रही हूं। हर हज करने वाले की एक ख्वाहिश होती है कि मदीना जाऊं तो रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के टुकड़े में बैठूं। अल्लाह मौका दे सबको, जिनको नहीं मिला और जिन्हें मिला है बार बार दे वो रौन के वापस लौटे। मैंने भी सुना था, अल्लाह ने मौका दिया, मैं जाके बैठ गया और पहली दुआ ये कि अल्लाह तेरे महबूब ने क्या है कि जन्नत का टुकड़ा है और तू कहता है कि जन्नत में जो मांगो वो मिलता है, तो मैं कुछ मांगने लगा हूं। और वो जो मांगा था ना, वो रब ने दिया है। वो सिर्फ इतना था कि मैं जब जामे सल्फिया में आया तो मेरे ननियाल बरेलवी, उन्होंने बोला ओए बेपीरा हो गए, ददियाल वालिदैन की तरफ जो अब्बू की तरफ है वो कसरत देवबंदी होगी खनगा शरीफ। उन्होंने कहा ओए बदमज़बा हो गए। और जो यार बेली थे उस शहर में रहने वाले वो सारे शिया थे, उन्हें पता चला तो कहने लगे बे इमामा हो गया है। ये 3 जुमले मुझे खा गए थे लेकिन मैं संभाल गया। मस्जिद नबवी में बैठ के एक ही दुआ की और इनकी वजह से
जामे सल्फिया में 6 साल इन 3 बोलों की वजह से मुबासों में, मुनाजरों में उलट साइड पे से हिस्से लिए और हमेशा टफ टाइम दिया। ये उन इदारों के असातिज़ा का प्यार है, मोहब्बतें हैं, हौसले हैं कि उन्होंने बर्दाश्त किया। इस रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में बैठ के एक ही दुआ मांगी। अल्लाह महबूब ने कहा है जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत से उतारा है, और तूने कहा है जन्नत में जो मांगोगे मिलेगा। अल्लाह मुझे सिर्फ उस इमाम का पैरोकार बना दे जिसने जन्नत खुलवानी है। बस एक सवाल था, दूसरा नहीं था। अच्छा, जो मैं कहना चाह रहा था वो जरा सोचिए कि जन्नत का टुकड़ा रब ने उतारा तो वहां जाके कितना सुकून महसूस करते हो यारो। ये जो जन्नत की 70-72 हूरों की सरदार अल्लाह ने जन्नत से उतार के आपकी घरवाली बनाई है, ये आपके घर को जन्नत कदा नहीं बना सकती और आप इससे जन्नत वाला सुकून नहीं ले सकते। लितस्कुनु इलैहा, बल्कि हर मर्द से पूछ लिया जाए ना जी ये सरदार वहां 72 हूरां उन्हां दी सरदार होनी है, तो अक्सर के जुमले ये होते जे इन्हें उत्थे होना फिर भाजी इदां दी जन्नत दी लोड़ ही नहीं। तो लेने क्या आए? ये लैलतुल कदर क्या है? जब जन्नत की हूरों की सरदार जो रब ने जन्नतों से उतार के जमीन पे तेरे लिए इमाम और लीडर और तेरे दिल की सुकून, इत्मीनान, मवद्दत और रहमत बना के उसके पेट में रहम डाल के तेरे घर भेजा हुआ है, अगर इसी की वैल्यू नहीं तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। जब जन्नत बीबी की कदर नहीं, सोचना जरूर। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में बैठ के तो बड़ा कुछ मिलता है, इसके पास से कुछ क्यों नहीं मिला? 12 बच्चे पैदा हो गए, पूछा भी शादी किधर हुई? कहते जी वो पढ़ा, वो 12 जम के भी वो पढ़े, अपनी नहीं है। तो फिर किस जन्नत की बात कर रहे हो? कहां से मांगते हो? क्या लेना चाहते हो? तीसरी चीज, रब ने शैतान बांध दिए। सवाल करना चाहता हूं, रब ने शैतान बांध दिए। आपने अपना शैतान बांधा? लाइफ तो नहीं आ रहा, और वो है नफ्स। नफ्स, यही पे बात खत्म है। नफ्स टू सिम वाली एक चीज है। अच्छे बुरे मैसेज दोनों ही आ जाते हैं कि नहीं? मस्जिद में भी बैठे हो बुरा मैसेज तो आएगा। आप बुराई के अड्डे पे बैठे हो, कुरान की आयत भेजी जाए वो तो पहुंचेगी, उसका काम है एक्सेप्ट करना। अल्लाह ने आपको नफ्स मुलहमा दिया है, अच्छाई की दावत, बुराई की दावत। पैगंबर 23 साल अच्छाई की दावत देते रहे। शैतान दी एक दिन दी यारी सारी सीरत भारी, और नाम फिर शैतान का है। नहीं जनाब, आपके अपने नफ्स मुलहमा का है, आपके अंदर पॉइंट है। थोड़ी तकलीफ कीजिए, थोड़ी तकलीफ कीजिए। अगर ये अच्छाई और बुराई के दोनों मैसेजेस ले रहा है, अगर आपने इसको नफ्से अम्मारा की तरफ मोड़ दिया तो फिर ये बड़े आर्डर देगा, उथल पंगे लगवाएगा, ये कर दे वो कर दे। फिर पूरी रात हाथ में मोबाइल है, खैर की खबरों को तेजी से भगाएगा। कोई शर वाली होगी तो उस पर रुकेगा, अब और आगे बढ़, अब और आगे बढ़। जो बढ़ के हाथ में थाम ले, ये मैना उसी की है, तो ये जन्नत नहीं बन रही, ये नफ्से अम्मारा की तरफ बढ़ रहा है। अब आ नफ्से लव्वामा की तरफ मोड़। आज की रात पैगाम देती है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तू इंसान है, नफ्से लव्वामा की तरफ मोड़। गुनाह किया तो क्यों किया, मारा तो क्यों मारा, इल्जाम लगाया तो क्यों लगाया, गाली दी तो क्यों दी, जुर्म हुआ तो क्यों हुआ, सोच में जो डाल दे। और जब तुझे सोच में डाल दे, नफ्से लव्वामा के बाद 4 दर्जे हैं अल्लाह तुझे मुझे अता कर देगा। पहला नफ्से मुतमइन्ना। सारी दुनिया भी लेक्चर देना, जो अंदर का नफ्स दावत देता है उससे अच्छा दावत कोई नहीं होती। अब्बा कहता रहा, मेरा पुत बाहर नहीं जाना, अंदरू आवाज आवे लै आप इस उम्र च तू जिथे मर्जी फिरता रहे, तू मैं बाहर नहीं जाना। मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, मेरे साथ 3 लोग आके बैठ गए, दरमियान में बड़े अब्बू हैं, इधर बेटा है, इधर भी बेटा है। तो मुझे पाकिस्तानी कपड़ों में देख के कहने लगे, पाकिस्तानी जी? मैं कहा जी। एक गल कहा कर दे की? मैंने कहा स्टूडेंट हूं मदीना यूनिवर्सिटी, एक रिक्वेस्ट है छोटी जी। मैंने कहा जी हुक्म।
यार ये मेरे बच्चे जवान हो गए, मैं उम्रे पे लाना चाहता था, ये आना ही नहीं चाहते थे, मैं बड़ी जबरदस्ती लेके आया, मसीह दिल ही नहीं लगता। तो मैंने कहा मेरे लिए हुक्म, इन्होंने कुछ समझा दो। मैंने कहा जो बाप नहीं समझा सका मैं क्या समझाऊंगा। कहने लगे नहीं फिर भी। मैंने दोनों बच्चों को ना पिछली सर में खींच लिया, पीछे बैठ गया। मैं क्या सुनाओ की रुला है। कहने लगे जी तू अब्बा जवान सी ना, अब्बे ते जवानी सी, उदो इंग्लैंड बड़ा चंगा सी, उते कोई रोला नहीं सी, कोई मेम नहीं सी, कोई ऐसा वैसा नहीं सी। साढ़े ते जवानी आई, अब्बा कहता है तू छड़ो तो चलिए। रोला इतना है, अब्बे की दावत काम नहीं करती, खतीब अदीब की दावत तहरीर तकरीर काम नहीं करती। जिस दिन अंदर से आवाज उठी ना, तब्दीली का दिन वो होगा नफ्से लव्वामा, जब तूने कह दिया कि तूने गलत किया है तो क्यों किया, तब तू मुड़ेगा। तब मुड़ेगा तो दिल मुतमईन, आवाज आएगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओए पुरसुकून रूह, अल्लाह हमें ऐसा कर दे। अच्छा इसका अगला दर्जा है इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तूने जो काम राजी होके किए थे ना, ये उसके बदले में मैं भी राजी हो गया। जबरदस्ती का काम अल्लाह को नहीं गवारा। रदी तो बिल्लाह रब्बन का माना ये है जो करना है अंदर से कर। मुझे बड़े लोग कहते हैं ये कह दो दोस्त है साडा थोड़ी मनेगा, दाढ़ी का कह दो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना देते हैं, क्योंकि जिस दिन अंदर की आवाज आई ना, जमीर की। कल मैं जुमला पढ़ा था, किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 7.5 अरब लोग जिंदा हैं। उसने सवाल किया कि 7.5 अरब लोगों में से ज़मीर कितनों के जिंदा, कहता ये पता नहीं। ज़मीर कितने लोगों के जिंदा ये पता नहीं, जो मुझे मेरा मन ही अंदर से ना जगा सके। आइए आज की इस रात में खुद को जगाया है। मस्जिद बड़ी हो, मंदिर बड़ी हो, जहां बड़ी हो विच मसीते, हर जगह पे घुस गए, अपने मन में घुस के देखा ही नहीं है अंदर क्या है। इसको लेके आवाज दिलाइए, ये नफ्से राजिया हो जाएगा, नफ्से मर्जिया हो जाएगा। और जिस पे रब राजी हो जाए, वह रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, देख के आवाज दे के कहेगा आजा अर्श के साए में आजा, आजा बुल सरात से निकल के आजा, आजा हौज़े कौसर के जाम पी के आजा। और आखिरी गुजारिश, मैंने वो जो मांगा था ना रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में, अल्लाह वो आपको दे दे। मैंने उसके बाद शरीयतों को खंगाल डाला, 17 दुनिया की लाइव फिके पढ़ डाली, उसूल फिक खंगाले। लोग कहते थे कि शायद ये टॉपर बनने के चक्कर में, नंबर ज्यादा लेने के चक्कर में, दुनिया को टॉप करने के चक्कर में, गोल्ड मेडल लेने के चक्कर में, नहीं, मेरा चक्कर कुछ और था। मैंने ददियाल को कहीं और देखा, ननियाल को कहीं और देखा, याराने दोस्ताने को कहीं और देखा, 1.25 लाख जहरी बातमी बुजुर्गों के दरबारों मिजारों को देखा। वो तरफ, वो जुस्तजू, वो कदर के कल क़यामत के दिन पड़े। कोई बेपीरा कह रहा है, कोई बेईमामा कह रहा है, कोई बदमज़बा कह रहा है। अल्लाह से पूछा, अल्लाह जन्नत कौन सा इमाम खुलवाएगा, मुझे उसके साथ कर दे। इमाम अबू हनीफा खुलवाते, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे जन्नत चाहिए। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम जाफर, जो भी इमाम है। लेकिन सारी दुनिया की कुतुब को खंगालने के बाद पता चला कि ये दुनिया में जो जन्नत खोल दी जाती है रमजान में, जो जन्नत खोल दी जाती है वुजू करने के बाद शहादतैन पे, जो जन्नत खोल दी जाती है औरत नमाजें पढ़े, रोजे रखे, अपने वजूद की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे, आंखों दर खुलते हैं। अल्लाह ने क़यामत के दिन इस जन्नत को पैक कर देना है, सील कर देना है, लॉक है, नहीं खुलने वाली। अल्लाह किससे खुलवानी है? अल्लाह कहते हैं कि सबसे पहले जन्नत के लिए मैंने लॉक रखा है, उस लॉक का नाम है फिंगरप्रिंट। अब तो समझाना आसान है ना, मोबाइलों में है, आपका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, पूरे घर की उंगलियां लगा ले, बात नहीं बनेगी। अब्बे के अब्बे के अब्बे को भी बुला ले, महबूब के महबूब के महबूब को भी बुला ले, नरम नरम नाजक नाजक बड़े बड़े अजमत वाले बादशाह हुक्काम भी बुला ले। मेरे चांद आपका फिंगरप्रिंट लगेगा तो खुलेगा। अच्छा, किसका फिंगरप्रिंट है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाएगा। आपके अपने हाथ से जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है।
हाथ लगा, किसके फिंगर प्रिंट है? मुझ पे ना रखना, पढ़ना, सारी शरीयतें पढ़ डालो। फिंगर प्रिंट लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दूसरा लॉक बाई फेस लॉक लगता है कि नहीं? आपके मोबाइलों में मौजूद है। मैं तो पढ़ रहा था, बल्कि हंस भी रहा था कि शादी पे किसी ने सिखाया, उसने फेस लॉक लगा दिया। घर आके सासू माँ को कहने लगी, अम्मी आज ना मैं एक नया लॉक सीख के आई हूँ, अभी देखिएगा। फ्रेश हुए, कपड़े बदले, माँ के सामने आके बैठ के सामने, अम्मी देखना मैंने मुंह के सामने करना है, इसने ऑटोमेटिक खुल जाना है। मुंह के सामने किया, वो नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? आपको बेहतर पता होगा, आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है, लाहौर में रहते हैं। खैर, मोहम्मद रसूल सल्लम का फेस लॉक, मुस्तफा का चेहरा सामने आएगा, अभी भी नहीं खुलने वाला। आवाज आई, मंबिल बाब, दरवाजे पे कौन है? तीसरा लफ्ज मोहम्मद, खुद मोहम्मद रसूल सल्लम की जुबान से, आना मोहम्मद। जन्नत की जुस्तजू, लैलतुल कदर की जुस्तजू करने वालों, ये वो हस्ती है कि जिसका फेस लॉक, जिसका फिंगरप्रिंट, जिसका नाम मोहम्मद, उनकी अपनी जुबान से बोला जाएगा तो अंदर से आवाज आएगी, हाँ हाँ यही इमाम, यही हस्ती है जिनके बारे में कहा गया था कि ये शर्तें पूरी हो तो जन्नत खुलेगी, जन्नत खोल दी जाएगी। अल्लाह तुझे उस इमाम का मुत्तबे बना दे, रह जहां मर्जी। पैरवी मोहम्मद रसूल सल्लम की कर, इबादात में, मुनाजात में, क़याम में, रुकू में, सुजूद में, जिंदगी में, तर्ज बंदगी में, लेने देने में, अपनी तिजारत, सियासत, क़यादत में। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई पल ऐसा नहीं कि क़यामत के दिन रब तुझे महरूम रखे। दुनिया की जिंदगी तो गुजर ही जाती है। अल्लाह ताला यहाँ भी कदरदान बना दे, आगे जाके कब्र में भी मेहरबानियां दिखाए, हशर नशर में आसानियां दिखाए, और क़यामत के हिसाब व किताब में मालिक बगैर हिसाब के या नरमियां करते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे मेरे महबूब के महल के सामने महल दे दे। मुश्किल तो नहीं भाई। मैंने तो अल्लाह से जन्नत भी लेनी है, अल्लाह ने किसको देनी है? मेरे अब्बू की है, आपके भी अब्बू हुई है, मेरे भी अब्बू हुई है, आदम जी की है। तो जरा जी के धड़ल्ले से, आजिज़ी से मिट के, इनके सारी करके, आजिज़ी करके रब से कहना है, अल्लाह दे, देनी नहीं, लेनी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफू, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू। इसका माने ये है कि अल्लाह सिर्फ माफिया नहीं चाहिए, सिर्फ माफी नहीं चाहिए। जनाजे में क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। अल्लाह इसको माफ कर दे। बस औकात माफ कर दिया जाता है, पैसे रोक लिए जाते हैं, तनख्वाह नहीं दी जाती। ठीक है, तूने जो बोंगियां मारी हैं, जा, तुझे माफ किया, लेकिन तेरा बोनस नहीं, साहब का वाजिबात नहीं दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाह माफ भी कर, वरहमहू, जितने साहब का वाजिबात है माजी वाले वो भी क्लियर कर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही। अल्लाह इसके मामले इतने आफियत वाले कर दे कि सारी दुनिया राजी हो या ना हो, तू राजी हो। और सिर्फ रजा ही नहीं, वाफ़ु अन्हु, अल्लाह इसको जन्नत दे, अपना दीदार दे, मुआफियां दे, कामयाबियां दे, आखिरी मरहले तलक दे। ये चल के आया है, गुनाह साफ भी करने हैं, पानी से होते हैं तो कर दे, ओलू से होते हैं तो कर दे, नहीं तो बर्फबारी अपनी रहमतों की करके कर दे, अच्छी मेहमान नवाजी कर। और क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही। ला घर चंगा नहीं, अगे घर चंगा दे दी। व अहलन खैरन मिन अहलिही, सारे रिश्तेदार अच्छे नहीं थे, अल्लाह ये ना उठे दमी बदल दे। व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, इत्थे वाली जनानी चंगी नहीं सी, उत्थे कोई होर दे दे। ये बंदा चंगा नहीं, इनू बंदा होर दे। अगर ये जुमले नहीं है तब्दीली के तो मुझे कहिए। तो फिर ऐसे क्यों बदल रहे हैं कि जाते जाते भी वो कहा जा रहा है कि बदल दे सारा कुछ? तो पहले बदलिए, चेंज कीजिए, कीने निकालिए, मोहब्बतें डालिए, जहन्नम कदे खत्म कीजिए, जन्नत नुमा महल्लात, झोपड़ियों को बना डालिए, इल्तिजा कीजिए, रुजू कीजिए, तब्दीली लाइए। ये लैलतुल कदर तुम्हारी है, ये रात तुम्हारी है, बात तुम्हारी है, अर्शे बरी वाली जात तुम्हारी है। और उसी का ये मैसेज था जो आपको दिया। मैं खुद भी मुखातब हूं अपने आप को, थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए, चेंज आनी चाहिए, सख्तियां नरम होनी चाहिए। ये जो चेहरों के ऊपर अपनों के लिए हमारे चेहरे कुछ और होते हैं,
باہر یاروں دوستوں میں کھل کھلانے والے، ہنسنے والے، کہہ کے لگانے والے، مسکرانے والے، ابو کے سامنے اور امی کے سامنے اور بیوی کے سامنے اور بہنوں کے سامنے اور رشتہ داریوں میں صلہ رحمیوں کی جگہ کچھ اور، اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، سب سے اچھا وہ ہے جو پہل کر لے، پہل کر کے آگے بڑھیے انشاءاللہ۔ آج کی رات اور پھر کہیے اللہم انک عفو، اللہ میں نے سنا ہے کہ تجھے معاف کرنا یہ تیرا وصف ہے اور تجھے اچھا لگتا ہے، تو میرا ایک چھوٹا جا کام ہے فاعف عنی، ہم ماڑی جی پچھلی زندگی دے گناہ نے اللہ کہتے ہیں لے آ، جتنے کھوٹے پن ہیں استغفار کر دے، میں پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، حال بہترین کر دوں گا، مستقبل تیرا اچھا کر دوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت بیان کہ آج کی رات اگر ہم اسی بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ